So hello and welcome. The first question, WHO definition of normal sperm count. So semen analysis का ये जो 2010 guidelines है WHO की, पूरी याद कर लेना. 10 million, 20 million, 40, 50, 60 कितना? तो the normal is more than 15 million per ml. वो उसका concentration है और ये guidelines हैं, शेयर कर रहे हैं आपके साथ. Just learn, go through. ए को छोड़ के सारे options correct हैं. Next question, aspermia is the term used to describe absence of semen, absence of sperm in ejaculate, absence of sperm motility, occurrence of abnormal sperm. तो ये aspermia है, azoospermia नहीं है. इसका मीनिंग होता है absence of semen when there is low volume semen in the ejaculate. The cause is either ejaculatory duct obstruction or retrograde ejaculation, and the treatment is surgical, or you can perform intrauterine insemination or ICSI, intracytoplasmic sperm injection through IVF. Next question, a 25-year-old infertile male underwent semen analysis. Result shows sperm count 15 million per ml, ये normal है. pH 7.5, ये भी normal है. Volume 2 ml, ये भी normal है. No agglutination is seen, very good. Morphology shows 60% normal, 4% is sufficient. 60% motile sperms, 40% is sufficient. Most likely diagnosis is. So the report is normal, normospermia. Next question, which of the following is true about obstructive azoospermia? Increased FSH, increased LH, normal FSH, LH, increased LH, normal FSH, increased FSH, normal LH. Azoospermia is of two types, secretory when spermatogenesis is defective. Here FSH and LH will be raised, and obstructive where there is ejaculatory duct obstruction. So here the hormones will be normal, but the ejaculate will not contain sufficient sperms. Here I am sharing with you the whole diagnostic criterias, and so go through this. So FSH and LH will be normal in obstructive azoospermia. Indications of intrauterine insemination IUI are all except hostile cervical mucus, unexplained infertility, oligoasthenospermia, luteal phase defect. So the answer is D, luteal phase defect. Intrauterine insemination is a procedure जिसमें कि हम सर्विक्स को बाईपास कर देते हैं और डायरेक्टली यूट्रस में प्रोसेस सीमन इंस्टिल करते हैं. तो उसमें अगर एक्ट ऑफ कॉइटस में कहीं कोई प्रॉब्लम है, या फिर अगर सर्विक्स में कोई फैक्टर है, सर्वाइकल फैक्टर जैसे एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज हैं या सर्वाइकल म्यूकस थिक है, या फिर अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है या मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स और नंबर ऑफ द स्पर्म्स कम है, इन सब कंडीशन में जो है IUI किया जाता है. सो द आंसर इज डी. In which case homologous artificial insemination is used in females? Options: hormonal imbalance, tubal block, cervical factor, all of the above. When the sperm is from the husband, it is homologous. When the sperms are donor sperms, it is heterologous IUI. Slide shows you indications for homologous IUI. Cervical factor, uterine vaginismus, where there is contraction of the vaginal muscles suddenly, and there is problem in deposition of the semen, and ovulatory dysfunction in cases of PCOS. You want to ensure कि fertilization हो जाए, इसलिए IUI कर लेते हैं. Now indications in the male for homologous IUI: poor sperm quality, ejaculation problem, and causes of oligoasthenospermia, जहाँ motility और count दोनों कम है, वहाँ पे हम होमोलोगस IUI करते हैं. और ये रिक्वायरमेंट्स हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की. एज 37 ईयर से कम होना चाहिए ताकि अच्छा ओवेरियन रिजर्व हो, ओव्यूलेशन होना चाहिए, क्योंकि IUI में तो हम सिर्फ स्पर्म को यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं फैसिलिटेट करने के लिए फर्टिलाइजेशन, लेकिन ओव्यूलेशन तो चाहिए. और अगर ट्यूब्स पेटेंट नहीं है तो IUI नहीं हो सकता. तो पेटेंसी ऑफ ट्यूब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट.
तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि किस में यूज़ करेंगे होमोलोगस? तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस में, जहाँ ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या ट्यूबल ब्लॉक है वहाँ तो नहीं करेंगे, सर्वाइकल फैक्टर में यूज़ करेंगे, तो सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विथ हस्बैंड सीमन इज इंडिकेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस एक्सेप्ट। सेम क्वेश्चन है कि होमोलोगस किस में करेंगे? ओलिगोस्पर्मिया में, इम्पोटेंसी में, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज में और एजोस्पर्मिया में। क्वेश्चन है किस में नहीं करेंगे, एक्सेप्ट है। तो आंसर इसका होगा, क्योंकि ऊपर के तीनों इंडिकेशन तो अभी हमने देखे कि हो सकता है, करना चाहिए, तो एजोस्पर्मिया इसका आंसर है। नेक्स्ट, द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमन सेमाइनल फ्लूइड इज फ्रॉम testis, seminal vesicle, prostate and bulbourethral glands. The answer is seminal vesicle. 60% जो है वो यहाँ से होता है, rest of it prostate से होता है semen का production. Now the next question, absent fructose content in the seminal fluid suggests so congenital absence of seminal vesicle, partial duct obstruction, none or both. Here the answer is both. या तो वास डिफरेंस का इजैकुलेटरी डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या सेमिनल वेसिकल रहे ही नहीं, क्योंकि सेमिनल वेसिकल से ही फ्रक्टोज आता है सीमन में, तो इसका आंसर है बोथ। सो हियर इन दिस क्वेश्चन यू आर बीइंग आस्क्ड दैट अ कपल प्रेजेंट्स टू द फिजिशियन कंप्लेंट्स ऑफ बीइंग नॉट एबल टू कंसीव फॉर क्वाइट सम टाइम। तो कितना समय के बाद बोलेंगे कि उसका जो है वो डिक्लेयर करेंगे कि इनफर्टाइल है? तो मिनिमम पीरियड 1 ईयर होता है उसका। 1 ईयर के बाद हम इनफर्टाइल बोल सकते हैं अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई आफ्टर अ सेक्सुअली एक्टिव मैरिड लाइफ। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन यू आर बीइंग आस्क्ड दैट फीमेल वाज इन्वेस्टिगेटेड, दैट वाज नॉर्मल। मेल में कुछ प्रॉब्लम थी सीमन में, तो कौन सी फाइंडिंग एबनॉर्मल है? तो यहाँ वॉल्यूम का है 2 ml से ज़्यादा है, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन 40 मिलियन पर ml, वो भी ठीक है। 30% नॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी, तो 4% ही चाहिए। 30% प्रोग्रेसिव स्पर्म मोटिलिटी, हाँ तो ये एबनॉर्मल है, 32% है क्राइटेरिया, तो यू हैव टू लर्न दैट गाइडलाइन। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेल विथ एजोस्पर्मिया on examination, size of the testis, normal FSH, normal testosterone, most probable cause is. So when the size of the testis is normal, I shared with you that chart, you learn that chart and you can answer this question. माल डिसेंडेड टेस्टिस में साइज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और काल्मन सिंड्रोम जेनेटिक कॉजेज हैं और उसमें साइज स्मॉल रहेगी। सो द आंसर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डक्ट। अब इसका आंसर बताओ। इन एजोस्पर्मिया the diagnostic test which can distinguish between testicular failure and obstruction of vas deferens. First option, estimation of FSH, estimation of testosterone, karyotyping, FNEC of testis. So already discussed, the answer will be FSH level. When the spermatogenesis is not there, FSH is elevated. When there is obstructive azoospermia, FSH is normal. So it is the differentiating test. Okay. चलो अब ये क्वेश्चन क्या है कि a couple complains of inability to conceive for 4 years. Husband had puberty 13 years. No smoking, no drinking, no medication. Semen analysis volume 0.8 ml, which is come. Sperm count is 0. Azoospermia. Fructose is absent. What is the problem? Seminal vesicle either not there or obstruction is there. So now you have to, what is the next best step for this patient to diagnose his cause of fertility? Option क्या देता है? Testicular FNAC, ultrasound for obstruction, local palpation of vas और karyotyping. तो सही आंसर है अल्ट्रासाउंड। TRUS, transrectal ultrasound, diagnostic for obstructive azoospermia. Next question, postcoital test detects all of the following except fallopian tube block, cervical factor abnormality, sperm count, sperm abnormality. तो बच्चों मोटिलिटी देखते हैं स्पर्म्स की। सर्वाइकल म्यूकस को ड्रॉ करते हैं आफ्टर 12 to 24 आवर्स ऑफ कोइटस और हम मोटिलिटी देखते हैं कि कितनी है। अगर 10 से ज़्यादा स्पर्म्स मोटाइल हैं या एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं है तो फिर हम उसको
जो है नेगेटिव बोलते हैं पोस्ट कॉइटल टेस्ट को। बेसिकली सर्वाइकल म्यूकस में एंटीबॉडी देखने के लिए होता है, या सर्विक्स कितना अलाउ कर रहा है प्रेगनेंसी को, वो देखने के लिए होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या नहीं पता चलेगा, तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक इसका आंसर होगा, उसको छोड़ के बाकी सब थोड़ा थोड़ा पता चल सकता है। सेकंड क्वेश्चन है पोस्ट कॉइटल टेस्ट इज डन फॉर, क्यों करते हैं? तो ऑप्शन देखो, सर्वाइकल रिसेप्टिविटी, स्पर्म मोटिलिटी, एब्सोल्यूट स्पर्म काउंट, एंडोमेट्रियल फंक्शन और वायबल स्पर्म काउंट। तो ये रिसेप्टिविटी के लिए करते हैं, सर्विक्स कितना रिसेप्टिव है वो देखने को। So the option is A. Then cervical hostility is tested by the following except. अच्छा, except किससे नहीं पता चलता है? तो स्पिन बार्किट। हाँ, अगर स्पिन बार्किट नहीं है तो फिर ठीक है, म्यूकस और होस्टाइल है। अगर मिलर कुजरॉफ टेस्ट स्पर्म कितना पेनिट्रेट कर रहा है सर्वाइकल म्यूकस को, वो देखने के लिए होता है। तो इफ द स्पर्म पेनिट्रेट्स मोर देन 3 mm in 30 minutes, तो फिर वो मिलर कुजरॉफ टेस्ट से पता चलता है कि स्पर्म की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी अच्छी है। पोस्ट कॉइटल टेस्ट तो है ही, उसमें अगर एबनॉर्मल रोटेटरी मूवमेंट्स नहीं है, स्पर्म की मोटिलिटी, मोटाइल स्पर्म्स का काउंट मोर देन 10 पर हाई पावर फील्ड है, 10 to 30 होना चाहिए ना, तो वो जो है वो नॉर्मल है। तो इसका आंसर है डी, केलर्स टेस्ट। नेक्स्ट, पोस्ट कॉइटल टेस्ट शोइंग नॉन मोटाइल स्पर्म्स इन द सर्वाइकल स्मीयर एंड मोटाइल स्पर्म्स फ्रॉम द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। तो क्या सजेस्ट करता है? तो उससे ये पता चलता है कि स्पर्म जब पोस्टीरियर फॉर्निक्स में है तब तो नॉर्मल है, फिर सर्वाइकल म्यूकस की वजह से वो एबनॉर्मल हो गया, तो वो इम्यूनोलॉजिकल कॉज बताता है, एंटीबॉडीज, एंटी स्पर्म। ट्रीटमेंट फॉर सर्वाइकल इनफर्टिलिटी कैन बी ऑल एक्सेप्ट कॉन्डोम फॉर 3 months, IUI, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और क्लोमिफेन साइट्रेट। तो सर्वाइकल फैक्टर में बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते हैं 3 months, तब तक एंटीबॉडीज कभी कभी डिसअपियर हो जाती हैं। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन और गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन, इन दोनों प्रोसीजर्स में हम सर्विक्स को बाईपास कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा क्लोमिफेन साइट्रेट। सर्वाइकल होस्टिलिटी, कभी कभी सर्विक्स में इन्फेक्शन है या प्रायर सर्वाइकल सर्जरी हुई है और सर्वाइकल म्यूकस का कैरेक्टर किसी भी वजह से चेंज हो रहा है। क्लोमिफेन साइट्रेट तो एंटी ईस्ट्रोजन होता है, और एंटी ईस्ट्रोजन तो सर्वाइकल म्यूकस को और थिक कर देगा, तो ये तो नहीं हो सकता है आंसर। इन्फेक्शन होते हैं जब सर्वाइकल, तो उसको ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक से, वो उसका क्योर होता है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि किस में इनमें से कौन सा ऑप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में? वेट गेन, वेजिटेरियन डाइट, लेस एक्सरसाइज, वेट लॉस। तो वेट और एक्सरसाइज का इफेक्ट तो होता है मेल्स में भी, फीमेल्स में भी। फीमेल्स में तो इनफैक्ट हैवी एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ा कॉज है इनफर्टिलिटी का, तो इसका आंसर है सी, वेजिटेरियन डाइट का कुछ नहीं इफेक्ट।